Good evening, students. I am here, Meena Sharma, to explain you economics chapter, government budget. This chapter has weightage of 6 marks. So here, first of all, I shall explain you meaning of government budget, its features, then objectives. Firstly, I shall explain the points in English, followed by Hindi explanation. Now, meaning of government budget. Government budget is a statement of estimates of the government receipts and expenditure during the period during an accounting year, which runs from April 1st to March 31st. Now, features. It is an estimate and not an actual statement. Second, it is prepared annually. Third, it is a constitutional requirement to present budget before Parliament. Fourth, revenue and expenditure are planned according to objectives of government. Fifth, budget impacts the economy through aggregate fiscal discipline and resource allocation. स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको पहले बता रही हूँ कि बजट एक आइटम वाइज स्टेटमेंट होती है सरकार की, जिसमें वो ये बताती है कि वो एक वर्ष में कितनी उसकी आमदनी होगी और कितने उसके खर्चे होंगे. ये एक्चुअल नहीं होते, ये एस्टीमेट होती हैं. इसके 5 फीचर्स हैं. पहला, ये एक जो भी सरकार इसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के जो एस्टीमेट्स देती है वो एक्चुअल नहीं होते. इसको एनुअली प्रिपेयर करा जाता है, एक वर्ष के लिए प्रिपेयर करा जाता है. और थर्ड पॉइंट, ये सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेवारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की कि वो पार्लियामेंट में बजट को पेश करे, जिस दिन उसको कहा जाए प्रेसिडेंट के द्वारा. बजट में सरकार के आमदन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पेश करे जाते हैं, जिसका पर्पस होता है जो बजट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होते हैं. बजट इकोनॉमी के फिस्कल डिसिप्लिन को प्रभावित करता है और ये बताता है कि सरकार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेगी. नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, reducing inequalities in income and wealth. The government uses fiscal instruments of first taxation, government revenue, second subsidies, government expenditure, to improve the distribution of income and wealth in the economy. Higher taxes can be imposed by the government on income earned by the rich and also on the goods consumed by them in order to reduce their personal disposable income. Also, in order to increase disposable income of the poor, government can provide free services of education, health, etc. Equitable distribution of income is a way to social justice. Social justice is the principal objective of any welfare providing country like India. It is also known as distribution function, as government alters the income distribution to make it fair distribution. इस पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट का बजट में मकसद होता है कि इनकम और वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसमें इनइक्वालिटी है, उसको कम करा जा सके. उसको कम करने के लिए सरकार अपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है. पहला, टैक्स, जो कि गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है. दूसरा, सब्सिडी, जो कि गवर्नमेंट के खर्चे का सोर्स है. उसके लिए गवर्नमेंट जो ज़्यादा टैक्सेस हैं, हायर टैक्सेस हैं, वो रिच के ऊपर लगाती है, जिससे रिच की जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, और उस जो पैसा आता है सरकार के पास, उसको वो गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है, जैसे उसकी एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए. ऐसा सरकार क्यों करती है? क्योंकि वो जो गरीब लोग हैं उनको सामाजिक न्याय देना चाहती है, और जो सोशल जस्टिस है वो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी देश की सरकार का. इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है सरकार का, जैसे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. सेकंड पॉइंट, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट रेफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर. द गवर्नमेंट सीक्स टू reallocate resources with a view to balance the goals of profit maximization and social welfare.
Unlike private enterprises, government targets social welfare also along with profit motive. Production of goods which are injurious to health like wine, cigarette is discouraged through heavy taxation. On the other hand, production of socially useful goods like khadi is encouraged through subsidies. If private sector does not take initiative in certain activities, government directly controls them like water supply, sanitation, etc. It is also known as allocation function, as government attempts to provide certain goods and services which cannot be provided through the market mechanization. Market mechanism, reallocation of resources. इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज को अच्छे यूज़ पर कैसे लगाना, एक यूज़ से दूसरे यूज़ पर कैसे लगाना. गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है जिससे कि इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाया जा सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और सोशल वेलफेयर में. जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा ही अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाता है जहाँ पर उसे प्रॉफिट मोटिव हो, ना कि सोशल वेलफेयर. जैसे वो उन गुड्स की प्रोडक्शन करता है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, जैसे कि वाइन, सिगरेट एट्सेट्रा. सरकार प्राइवेट सेक्टर को परमिशन तो दे देती है प्रोडक्शन करने की, पर उसको डिस्करेज करती है हैवी टैक्सेशन से. दूसरी तरफ ऐसे गुड्स जो कि सोशली यूज़फुल हैं, जैसे कि खादी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सरकार उनको प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडीज़ देती है. अगर प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इनिशिएटिव नहीं लेता कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने का, इसलिए सरकार वो पब्लिक गुड्स को खुद प्रोड्यूस करती है, जैसे कि वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है एट्सेट्रा. इस फंक्शन को एलोकेशन फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि सरकार यहाँ पर कुछ गुड्स और सर्विसेज पुअर लोगों को सोशल सर्विस मद्देनज़र रखते हुए लोगों को प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको मार्केट मैकेनिज्म कहा जाता है. थर्ड पॉइंट, economic stability. Using the revenue and expenditure policy, the government ensures economic stability in the economy. Free interaction of market forces, that is, the forces of supply and demand, are bound to generate trade cycles, also called business cycles. These refer to the phases of recession, depression, recovery, and boom in the economy. Budget is used as an important policy instrument to control the situation of deflation and inflation. Government reduces its expenditure and increases revenue to correct inflation. Government increases its expenditure and reduces revenue to correct deflation. The government tries to achieve the state of economic stability. Economic stability increases the rate of growth and development. It is also known as stabilization function, that is a stabilization function as government brings some policy measures to control the level of aggregate demand. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसको हम प्राइस स्टेबिलिटी भी कहते हैं, इसमें सरकार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्यों नहीं होती? उसका कारण है कि जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं या ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स इकोनॉमी में जनरेट होती हैं. ये ट्रेड साइकिल्स में 4 फेजेस होते हैं: रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी और बूम. बजट के द्वारा सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी मतलब फिस्कल पॉलिसी के द्वारा ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है. गवर्नमेंट अपने जो खर्चे को कम कर देती है और टैक्स को बढ़ा देती है जब उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, और जब उसने डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तब वो खर्चे को बढ़ाती है और टैक्स को कम करती है, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करा जा सके, ग्रोथ हुए, और इसी को स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी कहा जाता है. नाउ फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग public enterprises. The government seeks to accelerate the pace of growth by stabilizing public sector enterprises. The budgetary policy of the government targets to increase the rate of growth through public enterprises. Often public sector enterprises are encouraged in areas where private monopolies occur.
तो इस पॉइंट में आपने बताना है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर वो अपनी नेचुरल मोनोपली एस्टेब्लिश करके, जैसे रेलवेज वगैरह, रेलवेज को उसका एक एग्जांपल है कि उसको एस्टेब्लिश करके लोगों को ये जो गुड्स और सर्विसेज और मूवमेंट ऑफ पीपल को पॉसिबल कर सकती है, जो जैसे कि ऐसे जो इनिशिएटिव हैं वो प्राइवेट सेक्टर नहीं लेता। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। Government through its fiscal policy target to inject sufficient resources by encouraging saving and investment. This will further enhance capital formation and level of production, causing rise in national income and economic growth. Growth of economy कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो। जीडीपी का मतलब है आउटपुट इंक्रीज़ होना, गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज़ होना। वो इंक्रीज़ कैसे होंगी? जब गवर्नमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगी, जिससे कि देश में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, देश की आमदनी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। नाउ structure of budget or components of budget. There are 2 components of budget. Number 1, budget receipts. Budget receipts are of 2 types, revenue receipts and capital receipts. Budget expenditure. It is also divided into 2 parts, revenue expenditure and capital expenditure. तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बजट है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक बजट रिसिप्ट्स, दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स को 2 पार्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ मीनिंग ऑफ बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स रेफर टू estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. It consists of revenue receipts and capital receipts. तो बजट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होती हैं जो उसको सारे सोर्सेज से मिलती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। फर्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट असेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। बजट रिसिप्ट सरकार की वो रिसिप्ट्स होती हैं एक जो उसको एक फिस्कल ईयर में प्राप्त होती हैं, जिससे ना तो लाइबिलिटी के ऊपर कोई असर प्रभाव पड़ता है और ना ही असेट्स के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। These receipts, A point, do not create a corresponding liability for the government. ये सरकार के लिए किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं देती। एग्जाम्पल, टैक्स रिसिप्ट। नंबर 2, इट डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे सरकार के असेट्स में भी रिडक्शन नहीं आती, जैसे फी, फाइन, ग्रांट्स एट्सेट्रा। बजट रिसिप्ट्स are further classified into 2 parts, tax receipts and non-tax receipts. Now tax receipts. Tax receipts are all, these consist of all direct and indirect taxes, for example GST. Non-tax receipts, these are received from sources other than taxes like fee, fine, grants etc. तो टैक्स रिसिप्ट्स वो होती हैं जो सरकार को सब प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलती हैं, और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स वो होती हैं जो टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से मिलती हैं, जैसे फ़ी, फाइन, ग्रांट्स एट्सेट्रा। नाउ वी शैल टॉक अबाउट टैक्स रिसिप्ट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ टैक्स। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और अ फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग करस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। टैक्स एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से सरकार से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। नाउ फीचर्स ऑफ टैक्स। टैक्स के 4 फीचर्स हैं। इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट है। इफ़ टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन अ पर्सन, ही हैज़ टू पे इट, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। जब टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर इम्पोज करा जाता है तो वह कंपल्सरी पेमेंट होती है, उसको करनी पड़ती है। नंबर 2, द रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू टैक्सेस इज स्पेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो पैसा सरकार टैक्स के द्वारा वसूल करती है उसको वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। नंबर 3, देयर इज नो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफर्ड करस्पॉन्डिंगली, कि जो उसमें कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं होता कि कितना पैसा सरकार ने टैक्स के रूप में वसूल करा है और वो उसको किस प्रकार से खर्च कर रही है। नंबर 4, पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि टैक्स को पे करना व्यक्ति की अपनी निजी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट,
टैक्सेस आर इम्पोज्ड लीगली, जो टैक्स हैं वो कानूनी तौर पर लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, जो कि सरकार का नियम होता है। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस, पहले मैंने आपको बताया कि टैक्स क्या होते हैं। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स सरकार को देती हैं। ये एक कंपल्सरी पेमेंट होती है कि जो कोई भी जो पर्सन है वो उसको टाल नहीं सकता। दूसरी, जो पैसा सरकार के पास आता है टैक्स के रूप में, वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करा जाता है, लेकिन उसका कोई ये सरकार वो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होती सरकार की। और जो टैक्स की पेमेंट है वो व्यक्ति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो टैक्स है वो आपके ऊपर लीगली बाउंड होते हैं कि जो व्यक्ति ने लीगली बाउंड होने का मतलब है कि जो भी देश का नियम है उसके अनुसार लगाए जाते हैं। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ डायरेक्ट टैक्सेस. Direct taxes are those whose final burden falls on that person who makes the payment to the government. Here, the incidence and impact of the tax lie on the same person. Example, income tax, wealth tax. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस, इम्पैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन, इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनल बर्डन, उसी पर्सन के ऊपर लगता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, कि जिस पर्सन के ऊपर वो टैक्स लगता है वो उसके बर्डन को आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट